First of all, I would like thanks to Allah subhanahu wa ta'ala and my beloved sisters present here. Alhamdulillah. By the grace of Allah, hope you all are doing well. As we all know that Elahi International Academy presents the series of modern society and its evil. So please, I want to call Sister Labiba for the recitation of Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. MashaAllah, Labiba. Jazakillahu khairan kaseera. Let's move forward to our first topic, which is feminism. I want to call Sister Sarah Khan to describe her views on the topic of feminism. Let's start. Sarah Khan. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sarah inshallah and I'll be discussing the topic feminism. If you want, I can discuss in on it any language, whether it be Urdu or English. But for now, I'll go with English, and you can interrupt me anytime with the chat, and I'll explain everything that's not understood. So let's first begin to understand what is feminism. You can answer your own opinions in the chat box. You can answer your own opinion about the feminism on this in the chat box. You can explain what you think feminism is, what it stands for. I'm getting the messages that my voice is too low. Am I still not audible? Okay, use both languages. Okay, inshallah. I'll be explaining feminism using both the languages, Urdu and English. So let's begin. First of all, feminism, as someone in the chat box already explained, equal rights for women. So what it stood was for rights. Now let's first look at the basic rights that we have, like all the human beings have. What is the first right? The right to live, right? We all have the rights to live. The second right is to have like education.
The third one is to, have the right to their own self. They have the right that they are a person of their own, and they can. Okay, you want me to speak in Hindi? Inshallah. Okay. तो सबसे पहला जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है, वो होता है जीने का हक, राइट टू लिव। फिर हमारा आता है हमारी तालीम के ऊपर हक, हमारी एजुकेशन पे हमारा हक। फिर आता है हमारा थर्ड हक, और वो है जो हम अपने इंसान हैं, ठीक है। यानी हम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम किसी के अंडर में नहीं है, हम अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि वी हैव द राइट टू से नो टू अ मैरिज, हम किसी शादी पे मना कर सकते हैं, किसी कहीं पर द बेसिक वंस, कि हमारा हक है कि हम ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। देन वी हैव द राइट कि हमारे पास जो मतलब जाहिर सी बात है, जो भी हमारे लिए जरूरतें हैं हमारे लाइफ की नहीं, उनकी नहीं, उस सबका हमारे ऊपर मतलब हमें हक है उन चीजों का। हमारे ऊपर हक है कि हम एक अलग एक इंसान है जो कि वो सब काम कर सकते हैं जो कि इंसानों के लिए होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फेमिनिज्म कौन से जमाने में आया था और उसका क्या रीजन रहा था, ठीक है। अब जितने भी मैंने आपको हक अभी बताए, आपको लग रहा होगा कि यह हक ऑलरेडी इस्लाम में हमें दे रखे हैं। सबसे पहले जो इस्लाम ने हक दिया था, और तो वो किस चीज का हक दिया था? जीने का हक दिया था, कि उन्हें जिंदा नहीं गाड़ा जाए, कि वो जिंदा रहें। तो ये इस्लाम ने हमें ऑलरेडी हक दिया था। फिर इस्लाम ने हमें एजुकेशन का हक दिया था। फिर हमारे पास आता है कि इस्लाम ने हमें और कौन सा हक दिया था? इस्लाम ने फिर हमें हक दिया था कि हम एक एंटिटी है, इस वजह से हमारे पास राइट है कि हम प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, देयर वाज नो राइट टू प्रॉपर्टी, बल्कि एक जो औरत होती थी उसे खुद प्रॉपर्टी मानकर बांटा जाता था, इनहेरिटेंस में उसको दिया जाता था। उसके अलावा जितने भी मतलब और उसके राइट्स थे, राइट टू ओन वेजेस है, वो चीजों को मतलब कमा नहीं सकती थी। अगर वो कमाती भी थी तो जो भी उसका अर्निंग्स होती थी वो उसके गार्जियन के पास जाती थी, चाहे वो फादर हो या उसके हस्बैंड हो। तो उसकी कोई सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था। लेकिन ये इंडिपेंडेंस हमें इस्लाम में मिलता है, जिसमें हमें महर भी दिया गया है, हमें इनहेरिटेंस में हिस्सा भी दिया गया है। और इसके अलावा हमें ये भी कहा गया है कि जो इंडिविजुअल जो भी गुनाह करता है वो उसका अपना गुनाह है, और वो उसी को ही उसको उसका जवाब अल्लाह ताला के सामने देना होगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले एज अ स्लेव माना जाता था कि इस इंसान ने जो भी गलती करी है, वो इस औरत ने जो भी गलती करी है, इसका सबब कौन देगा, इसका जो गलती है वो किसको भुगतनी है, उसके हस्बैंड को, उसके फादर को। तो एक तरीके से जो वुमेन होती थी उसका कोई लीगल एंटिटी नहीं थी। और ये पूरी दुनिया का हाल था। ये सिर्फ ज़माने जहालिया में सिर्फ अरब का हाल नहीं था, ये पूरी दुनिया में चल रहा था। अब जहाँ-जहाँ इस्लाम आया, वहाँ पर ये जो उनके ऊपर एक बाउंडेशन थी, सोशल बाउंडेशंस थी, वहाँ-वहाँ उन बाउंडेशन से वो निकलने लगे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? फेमिनिज्म मुस्लिम क्रिएटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कहाँ से जनरेट हुआ था? ये आप सबको पता ही होगा। ये जनरेट हुआ था वेस्ट की तरफ से। और इसका बहुत बड़ा रीज़न था कि ये लोग अपने आप को ज़माने जाहिलिया से निकालना चाहते थे। लेकिन इनके पास डिवाइन लॉ नहीं था। डिवाइन लॉ जैसा हमारे पास है कुरान, ये हमें गाइड कर रहा है सही रास्ते पे। इनके पास ऐसा कोई डिवाइन लॉ नहीं पहुँच पाया था जो इनको गाइड करे सही रास्ते पर। तो इनको एक अपने खुद का सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़े, और वो कहलाता है फेमिनिज्म, जिसमें उन्होंने लड़ाई करी थी इन सारे ज़ुल्म के खिलाफ जो औरतों के ऊपर हो रहे थे। हम सबसे पहले देखते हैं जो स्टार्ट हुआ था, जो एक तरह से अ, जो ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ था, जो रैलीज निकलना स्टार्ट हुई थी, वो किसने निकालना स्टार्ट करी थी? तो ये उन औरतों ने स्टार्ट नहीं करी थी जो कि वर्कर्स थी, कि हमें कमाना है, हमें फैमिली नहीं चाहिए, नहीं। ये स्टार्ट हुई थी बेसिकली, वो स्टार्ट हुई थी हाउस वाइफ्स के ज़रिए, और उनका जो मेन मकसद था, वो राइट टू एजुकेशन नहीं था, वो राइट टू ओन प्रॉपर्टी नहीं था। उनका जो सबसे पहला रीज़न था, जिसके लिए वो खड़ी हुई थी सारी हाउस वाइफ्स मिलकर, वो थी राइट टू वोट। नाउ आप सोचोगी कि राइट टू वोट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब आज कितने लोगों के पास राइट टू वोट है, लेकिन वो उसको कितना यूज़ करते हैं। तो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि वो अपने राइट टू एजुकेशन नहीं खड़ी हो रही हैं उसके लिए, लेकिन वो
राइट टू वोट की नहीं खड़ी हो रही हैं, आगे से आगे उसकी नहीं आवाज उठा रही हैं सारी, वो भी हाउस वाइफ्स मिलकर। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि सारी जो हाउस वाइफ्स थी वो एक परेशान आ गई थी एक बहुत ही बुरी बुराई से जो उनकी सोसाइटी में थी। और वो बुराई थी अल्कोहल की। तो सभी लोग जो मतलब जाहिर सी बात है जो हस्बैंड्स थे, जो उनके बेटे थे, जो उनके जो भी मतलब आसपास में जो मर्दों को जानती थी, वो एक बहुत ही बुरी बुराई में फंसे हुए थे। वो अल्कोहलिज्म थी। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। और आपको पता है कि शराब की वजह से क्या कोई बुराइयां नहीं होती हैं, फिर एक बुराई होती है फिर उससे दूसरी बुराई अटैच होती है। और वो ऐसी जगहों पे जाते थे जहाँ पे एक मैरिड मैन को नहीं जाना चाहिए। तो ये एक तरह से फैमिली को ब्रेक डाउन कर रहा था। जो फैमिली यूनिट था, जो था कि एक फैमिली मतलब लॉयल्टी होनी चाहिए, वो साथ में रहेंगे, देयर थ्रू थिक एंड थिन। तो ये जो मेंटालिटी होती थी मैरिज की, वो खत्म हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल प्रॉब्लम। इसलिए वो खड़ी हुई थी। और जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करना स्टार्ट करी तो मतलब तादाद बढ़ती गई, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं परेशान इससे हो रही थी, बल्कि हर तरह के जो लोग थे यहाँ पर वो इससे परेशान हो रहे थे। चाहे वो एम्प्लॉयज थे जो परेशान थे कि उनके जो वर्कर्स हैं वो उनका वर्क एथिक अच्छा नहीं है। तो हर तरह के लोग थे खड़े होने लगे थे, लेकिन इसके फोर फ्रंट पे कौन थी? औरतें। फिर वो वोटिंग राइट क्यों लेना चाहती नहीं? बेसिकली वो वोटिंग राइट इसलिए लेना चाहती नहीं ताकि वो अल्कोहल को बैन कर पाए। उन्होंने इससे पहले कोशिश करी थी वो कंप्लेन कर कर बैन हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो बैन करने वाले हैं वो मर्द थे जो कि इसी प्रॉब्लम में मुब्तला थे। तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? इसलिए औरतें चाहती नहीं कि हमें राइट मिले ताकि हम इसको बैन कर पाए, हम वोटिंग कर पाए इस डिसीजन के लिए। नाउ व्हाट हैपेंड, जब इन्होंने इस चीज के बारे में खड़ा होना स्टार्ट करा तो ये बहुत ही लंबा चला था, ये कम से कम 40 इयर्स तक चला था। उसके बाद जो बिग बैन हुआ था जिसके बारे में हम जानते हैं, गोल्डन बैन जो हुआ था, जिसकी वजह से अल्कोहल बैन हो गई थी। और ये मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे ये बैन हुआ था, जहां पर बहुत सालों तक अल्कोहल बैन रही थी। और इसके बारे में अगर आप सर्च भी करें तो काफी ज्यादा इसके उन्होंने बहुत डिबेट करी थी कि क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली बहुत रिसर्च भी हुई थी, साइंटिफिक रिसर्च की क्या क्या बुराइयां होती हैं अल्कोहल की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए अकम्पलिशमेंट था जिसमें इन्होंने एक बुराई को खत्म करी थी, जो कि नहीं होती अगर इस्लाम होता तो। है ना? ये प्रॉब्लम क्या हो चाहिए कि इनके पास एक डिवाइन लॉ नहीं था जिसने ऑलरेडी एक जो सोसाइटल प्रॉब्लम थी उसको डिमोलिश करा हो। इसलिए ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब ये औरतें खड़ी हुई तो 40 इयर्स तक उन्होंने सिर्फ राइट टू वोट में ही लड़ती रही। तो राइट टू वोट के साथ उनका राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू ओन वेजेस, तो ये सब भी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा इनके यहाँ वेस्ट में एक ये भी प्रॉब्लम थी कि औरतों को एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं माना जाता था। पहले वो फादर की प्रॉपर्टी माना जाती थी और फिर वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी माना जाती थी। इसी वजह से उनकी कोई जैसे हम कहते हैं ना, लीगल आइडेंटिटी की जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं नेशन के, वो नहीं बनते थे। और इसी वजह से वहां से रिवाज भी उनका है कि वो लास्ट नेम अपना हस्बैंड का लेती हैं, यानी वो अपने पुराने नेम को छोड़ देती हैं और अपने हस्बैंड के नेम को अडॉप्ट करती हैं, यानी ये इनके अंडर में आ गई है। जबकि इस्लाम में क्या है कि हमारा लास्ट नेम हमारी एक लिनियज है और उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है, जो कि सही मुस्लिम और सही बुखारी से प्रूवन है कि अगर कोई इंसान अपना नेम या फिर अपने फादर की जो लिनेज है उसे मना करता है, उसे कैंसिल करता है, उसको अपने मतलब अपने आप से हटाना चाहता है, तो वो कुफ्र कर रहा है। बिकॉज ये लिनेज हमारे इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनके यहाँ अभी भी ये रिवाज है कि लास्ट नेम को अडॉप्ट करना। इसके पीछे ये इतना बड़ा रीजन रहा है कि वो ये मानते थे कि ये इनका बेसिकली इनका प्रॉपर्टी है, ये अपनी कुछ नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ तक हम बहुत सेंसिबल देखते हैं, ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि इस्लाम भी कंडोन करता है। ये वो चीजें हैं जो इस्लाम जिसके लिए खड़ा नहीं होता। राइट, ऑल दीज राइट्स आर समथिंग दैट इज गिवन बाय इस्लाम, इज सपोर्टेड बाय इस्लाम। तो इन सब राइट्स को हम देख रहे हैं कि ये सारे राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहे हैं हमारी लाइफ के लिए एज अ गुड पर्सन इन सोसाइटी, ताकि हम सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट बना पाए, ताकि हम बच्चों की अच्छी तरह रेयरिंग कर पाए। ये एक पिवटल राइट है जो औरतों को दिया गया है, एक पिवटल
पाइवटल अथॉरिटी है जो देना चाहिए और दी गई है इस्लाम में। लेकिन वेव, ये जो फेमिनिज्म का पूरा पार्ट है वो वेव्स में बांटा गया है। 1960 में एक वेव आई, सेकेंड वेव, जिसने जो फेमिनिज्म का मीनिंग था वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से जो मीनिंग हम जानते हैं वो है राइट टू हैव द बेसिक नीड्स ऑफ वुमेन, वो बदलना स्टार्ट हो गई। इसमें वेव सेकंड में जो है स्टार्ट हो गया, कुछ चीजें सही थी, जैसे कि उन्होंने स्टार्ट करा कि हमारी जो डॉक्टर विजिट है वो हम अकेले कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है वुमेन अकेले डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकती थी। वो अपना इलाज जब तक नहीं कर सकती थी जब तक उनको परमिशन स्लिप नहीं मिल जाती है अपने हस्बैंड या अपने फादर से, या उन्होंने परमिशन चाहिए होती थी फॉर बेसिक नीड्स। इसके अलावा काफी मतलब प्रॉब्लम्स थी जिनके लिए वो लड़ी हैं, गुड हेल्थ, एजुकेशन और इन सब के बारे में वो लड़ी थी। लेकिन इसके अलावा एक जो बुराई स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी, एक बुक लिखी गई थी कि एक औरत की जिंदगी रुक जाती है जब वो शादी करती है और वो मर जाती है जब वो उसके बच्चे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत नोटेबल एक फ्रेज बन गया था। हर जो रैली निकलती थी फेमिनिज्म के नाम पर वो ये गाती थी। उसके अलावा वो ये भी बोलती थी, मतलब एक तरीके से अ, बच्चों को पैदा करना एक बहुत डिमीनिंग जॉब बन गई और एलिवेट कर दिया नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब्स को, जहां पर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। तो उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया स्टेटिस्टिकली कि जो औरतें हैं जिनके बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रोन होती हैं सुसाइड के, बल्कि उन औरतों के मुकाबले में जो नहीं होती हैं। अब जिस औरत ने ये लिखी थी वो मदर ऑफ फेमिनिज्म कहलाती है। और सारा, उसने योर वॉइस इज स्लो, थोड़ा सा लाउडली। अच्छा अच्छा, वो जिसने ये बुक लिखी थी कि जो पूरी चाइल्ड रेयरिंग के खिलाफ जिसने बुक लिखी थी, वो खुद अपने 40 इयर्स बाद जो है इस अपने स्टेटमेंट को उसने कैंसिल करा। उसने कहा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलत चीज कही थी, ये बिल्कुल ट्रुथ से बिल्कुल खिलाफ है जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो और औरतों ने एक्सपीरियंस करा है। और उसने उसके बाद स्टैटिस्टिक रिसर्चेस लाकर रखी कि ये गलत थी कि चाइल्ड बेयरिंग की वजह से औरत की जो स्टैटिस्टिक्स है सुसाइड की रेट वो इंक्रीज हो जाता है। उसने सारे अपने जो क्लेम्स थे एक तरह से उन्हें फॉल्स प्रूफ करा कि मैंने ये गलत बात कही थी। लेकिन तब तक गाड़ी निकल चुकी थी और जितनी औरतें थी वो उसके बात मानने को तैयार नहीं थी, और वो उसी की पुरानी जो बुक थी उसी को यूज कर कर अपने जो ओपिनियंस थे उनको आगे लेकर आती थी। तो वहां से ये चीज स्टार्ट हुई है। फिर थर्ड वेव आता है जहां पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सेलिब्रिटी सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिसमें सेलिब्रिटीज को यूज कर कर एक तरह से फ्रीडम का नोशन न्यूडिटी से लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अब हम कहते हैं काफी हम ये काफी नॉर्मल चीज भी रहता है कि लोग पूछते हैं कि कौन सी वो व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, तो इसमें जो सेलिब्रिटीज थी उनको यूज करा गया, और एक तरह से जैसे हम बहुत से औरतों को जानते भी हैं, मैरिलिन मनरो है जो कि बहुत ही फेमस मॉडल एंड एक्ट्रेस रही है। लेकिन उसका जो यूज करा जाता था वो ये यूज करा जाता था उसको हाइपर सेक्सुअलाइज कर कर एक तरह से ये दिखाया जाता था कि जो औरतें अपने आप को फ्री विल शो करती हैं वो असल में फ्रीडम होती है। और उनके फ्री विल का क्या मतलब होता है, उनके सामने फ्री विल का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करना। वो एक्सप्रेस कैसे करती हैं, अपनी बॉडी की तरफ से। तो ये एक तरह से ना जो हम कहते हैं कि ये जो एक हमारी एक इस्लामिक जो अब अगर आप फोटोज एंड वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें ज्यादातर जो लड़ाई ये होती है कि जो एक औरत होती है जो कवर्ड अप होती है उसे वो प्रूड बुलाते हैं और जो औरत कम कपड़े पहने होते हैं स्मार्ट बुलाते हैं उसे, या प्रोफेशनल बुलाते हैं उसे। तो ये एक तरीके से स्टार्ट हो गया था इस थर्ड वेव के साथ, जिसमें सेलिब्रिटीज को यूज करके एक तरह से ये आइडिया पुश करा गया था कि जो औरतें स्मार्ट हैं, जो औरतें एजुकेटेड हैं, जो औरतें प्रोफेशनल हैं, वो इस टाइप की ड्रेस पहनती हैं। एक तरह से ये ओपिनियन जो है लोगों के दिमाग में डाला गया था। और जाहिर सी बात है मीडिया को यूज कर कर जब एक ही आइडिया को पुश करते रहेंगे तो वो आइडिया बहुत जल्दी एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो डिगेटरी टर्म्स होते हैं, जो बुरे टर्म्स होते हैं, जो कि स्वेर वर्ड्स होते हैं, उनका यूज बहुत आम कर दिया कि हम लोग डरते नहीं है किसी से।
हम पोलाइट नहीं है, हम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि औरतें मर्दों से ज़्यादा अच्छी हैं। उन्होंने अच्छी किस तरह प्रूव करा कि हम डरते नहीं हैं कुछ भी लैंग्वेज यूज़ करने से। तो बेसिकली उन्होंने गालियों का यूज़ एक तरह से अच्छी शो में दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो आप मूवीज़ में देखेंगे तो पहले जो है मूवीज़ में स्वेयर वर्ड्स यूज़ करना, कर्स वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था। लेकिन इस थर्ड वेव के साथ बहुत आम तौर पे मूवीज़ पे एड्स में वर्ड्स लाइक जो स्लट्स हैं और ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं वो यूज करना स्टार्ट कर दिए। डैम और ये सारे वर्ड्स बहुत आम कर दिए ताकि जो है वो एक लेवल ऑफ डिग्निटी जो उन्हें बनानी थी वो कम हो जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ से हर चीज इस्लाम के खिलाफ स्टार्ट हो रही है। राइट, सबसे पहले हिजाब रिमूव, सब उसके बाद अच्छी लैंग्वेज रिमूव। राइट, एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना कि वुमेन आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, वो कंट्रोल करती हैं सब कुछ, तो हम मर्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से ये सिक्योरिटी लाना स्टार्ट होगी वेव 3 से। और अब है वेव 4 जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसमें आप देखेंगे कि LGBTQ कम्युनिटी को अपने साथ ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। उनको ये यूज कर, उन्होंने एक तरह से ये जो लिमिटेशंस होती हैं, कहते हैं हम इन लिमिटेशन से बाउंड नहीं है। वो ये मानते हैं कि फ्रीडम का मतलब है नो रूल्स, जो कि बहुत ऑड है, क्योंकि किसी भी कंट्री में फ्रीडम मानने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम एज अ ह्यूमन, एज अ फिलोसफिकल वर्ड्स, एज अ फिलोसफिकल पर्सन, हम किसी भी बाउंडेशन से अपने आप को ट्रैप नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ कोई जेंडर चीज नहीं होती है, हम अब इक्वल बन गए हैं। और उनके सामने सबसे बुरा इंसान जो हो सकता है वो हो सकता है एक वाइट मेल उनके नजदीक। इसके अलावा एक विक्टिम माइंडसेट बन गया है कि हमसे बुरा जो हमारे ऊपर तकलीफें आ रही हैं वो किसी और के ऊपर नहीं आ रही। बेसिकली जो, और वो रीजन जो देते हैं वो ये देते हैं कि हमारी जो औरतें थी उनको मारा जाता था, और वो जमाना, पुराना जमाने को यूज कर कर अपने आप को एज अ विक्टिम प्रेजेंट करते हैं कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुए, जबकि वो जुल्म हमारे ऊपर की जनरेशन्स को हुए, उनको नहीं हुए, लेकिन वो अभी भी अपने आप को विक्टिम के नाम से बुलाते हैं। और एक ये तरह से वॉर स्टार्ट हो गया है कि कौन ज्यादा बड़ा विक्टिम है। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सेटबैक है, ब्रेकिंग सेटबैक है। हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन विक्टिम माइंडसेट की वजह से हम अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहते। इसके अलावा क्या हुआ है, जो मैंने कहा बाउंड्रीज को ब्रेक करना है, तो कोई जेंडर नहीं है, कोई कोई भी मतलब फ्लूइड है, कोई इंसान कभी भी लड़का से लड़की बन सकता है, लड़की से लड़का बन सकता है, या फिर कुछ भी नहीं बन सकता है एट द सेम टाइम। और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि कुछ मुसलमान इसको LGBTQ मीन्स सेम जेंडर, नो, LGBTQ में सेम जेंडर नहीं आता है, उसमें बहुत कुछ आता है। लेस्बियन और गे में सेम जेंडर रिलेशनशिप्स आती हैं, बाइसेक्सुअल में बोथ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप, और ट्रांसजेंडर में आता है कि वो एक अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। और क्यू में क्वेयर आता है, और आपने ड्रैग क्वींस देखा होगा, उसमें बहुत कुछ आता है। ये बहुत ही बड़ा अ, एक तरह से ट्रैप है, जो कि बहुत ही बड़ा है। यस अरिबा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। इसके अलावा जो स्टार्ट हुआ है वो है हेटिंग द ट्रेडिशनल रोल्स। अब इसमें जो भी औरतें एक ऐसे ट्रेडिशनल रोल पे हैं जिसमें वो जॉब नहीं कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां पे एक टैग चला स्टार्ट हुआ है, ट्रैड वाइफ, TRAD, ट्रैड, WIFE, वाइफ। तो ये वो औरतें हैं जो कि वापस से अपने ट्रेडिशनल रोल्स पे गई हैं और ये कहना चाहती हैं कि हमारे जो एक तरह से जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल आउटलुक जो हमारे लिए वो है ट्रैड वाइफ का, जिसमें हम अपने सबसे बेस्ट पर्सन बन सकते हैं, जिसमें हम अपनी ट्रेडिशनल ड्यूटीज करेंगे, वो क्या है, घर का ख्याल रखना और बच्चों का ख्याल रखना। तो इस तरह से उन्होंने ट्रैड वाइफ एक स्टार्ट करा था टैग, जिसमें वो अपने बच्चों की वीडियोस, अपने घर की वीडियोस और टिप्स वगैरह वो भेजती रहती हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस पे जो अटैक्स आना स्टार्ट हो गए, उसमें जो फेमिनिज्म है उन्होंने डालना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हें जब अपने ट्रेडिशनल रोल ही पसंद है तो उन्हीं हस्बैंड के पास जाओ जो पहले जमाने में अपनी बीवियों को मारा करते थे। तुम ऐसी लाइफ चाहती हो क्या? जो चीजें हो नहीं रही हैं उनका एक तरह से वो हवाला देने लगे कि अगर तुम ये चाहती हो तो ये होगा। व्हाट इज LGBTQ? LGBTQ इज बेसिकली जहां पर एक तरह से जेंडर रिलेटेड अट्रैक्शन को कहते हैं,
जहाँ पर मेल मेल के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और फीमेल फीमेल के साथ बनाते हैं। और बायसेक्सुअल में वो ये कहते हैं कि हम किसी के साथ भी अट्रैक्शन फील करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, हम कहीं पर भी अपने आप को रोल कर सकते हैं। बेसिकली दैट होता है। उसके अंदर बहुत कुछ है। इंशाल्लाह हमारा आगे टॉपिक भी रहेगा इंशाल्लाह। प्लीज ज्वाइन दैट लेक्चर ऑल्सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा वो आप सबके लिए। नाउ वी हैव लाइक दिस ऑल वाज अ वेव। अब मैंने आपको बता दिया हम फोर्थ वेव पे हैं और ये सारा हमारी वेव्स रही हैं फेमिनिज्म। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव जो स्टार्ट हुई थी वो एक फैमिली यूनिट को बरकरार रखने के लिए हुई थी, जो एक फैमिली यूनिट को होल्ड करने के लिए स्टार्ट हुई थी। वो चाहती नहीं कि उनके हस्बैंड्स बार्स में नहीं जाएं, उनके हस्बैंड्स ऐसे जगहों पे नहीं जाएं जहां पर वो अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहे हैं, ताकि ये जो फैमिली बनाई है इसमें डाइवोर्स नहीं होता है, चाहे 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 क्या कहने वाली थी, ताकि ये जो फैमिली यूनिट है ये एक तरह से प्रोटेक्ट हो। तो वुमेन क्यों खड़ी हुई थी? अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फोर्थ वेव के साथ वो फैमिली सिस्टम को ही खत्म करना चाहती हैं। तो फेमिनिज्म का जो बेसिक मोटिव था वो चेंज हो चुका है। और अब वो, क्योंकि एक बार, ये एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि फायर विल आइदर बर्न द फॉरेस्ट और इट विल रेन। तो प्रॉब्लम ये होती है, या तो अगर कोई आग लगती है या कोई हमारी वो स्टार्ट होती है, तो या तो वो पूरा फॉरेस्ट को बर्न कर कर ही खत्म होगी, या फिर वहां पर बारिश हो जाएगी। यहाँ पर बारिश क्या है, सिर्फ इस्लाम ऐसी चीज है जो लोगों को गाइड कर सकती है। कुछ लोग हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया ट्राड वाइफ है, वो गाइड हो रहे हैं लोग। वो क्रिश्चियन के जरिए गाइड हो रहे हैं, वो ज्यूज के जरिए गाइड हो रहे हैं, वो अपनी थॉट के जरिए गाइड हो रहे हैं, वो इस्लाम के जरिए गाइड हो रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे बारिशें हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी यूथ और बहुत बड़ा यूथ जो है इस जो फॉरेस्ट है इसमें बर्न हो रहा है। इसलिए हमें एजुकेट करने की जरूरत है सबसे पहले अपने रिलेटिव्स को, और सबसे पहले जिसके भी भाई बहन हैं, जिसके भी सन्स या डॉटर्स हैं, उनको समझाने की। अब हम देखते हैं कि ये तो चले, हमने बात करी वेस्ट की, राइट। वेस्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है, वेस्ट में इस्लाम नहीं था इसलिए वो मिसगाइडेड हुए। लेकिन नॉन मुस्लिम्स तो हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान क्यों फेमिनिस्ट बन गए? जैसे मैं आपको बताऊं, फेमिनिज्म कम से कम अगर मैंने सर्च करा फेमिनिज्म के बारे में, तो 29 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म निकल कर आ गए, जिसमें अमेज़न फेमिनिज्म, एनार्की फेमिनिज्म, पॉप फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, एसेंशियलिस्ट फेमिनिज्म, women of color, fourth feminism, first feminism, lesbian feminism, moderate feminism, liberal feminism, socialist feminism, French feminism, material feminism, first feminism, cultural feminism, differential feminism, equality feminism, post-colonial feminism and Islamic feminism. तो इसमें एक ब्रांच है इस्लामिक फेमिनिज्म, जो इस्लाम और मुस्लिम पीपल ये मानते हैं कि इस्लाम या तो फेमिनिज्म है, या तो फेमिनिस्ट के साथ है, या फिर उनका दूसरा तरीका ये होता है ये समझाने का कि हमें इस्लाम को चेंज करने की जरूरत है। तो इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो कहते हैं कि इस्लाम जैसे स्टैंड करता है वो फेमिनिस्ट के साथ ही है, और दूसरी तरफ वो कहता है कि कुछ चीजें मुसलमानों के खिलाफ है जो हमें चेंज करने की जरूरत है। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस मिल जाएंगी। रीजन क्या है? इस्लाम चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से है, वो डिवाइन लॉ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। लेकिन फेमिनिज्म की शक्लें चेंज होती जा रही हैं, यहाँ तक कि पहली शक्ल और दूसरी शक्ल 100 साल के अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई है। तो इतनी बदल गई क्यों? क्योंकि इनके अंदर, इनके आसपास में कोई भी एक हम कहेंगे सिमिलैरिटी नहीं है। वो साथ में किसने बनाया है इसको? इंसानों ने बनाया है। और इंसान जो चीजें करते हैं वो वक्त के साथ बदल जाती है, इसलिए इस्लाम नहीं बदला और फेमिनिज्म बदल गया। अब हम देखते हैं कि पहले एकदम से हम जल्दी से नजर मारते हैं कि फेमिनिज्म क्या क्या अच्छाइयां लेकर आए। सबसे पहले जो औरतें मुसलमान नहीं थीं उनके पास वो सारे राइट्स पहुंच गए जिन राइट्स से वो एक अच्छी लाइफ जी सकती हैं, जिस जो राइट्स अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी मुसलमान औरतों को दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बुराई क्या है। बुराई ये है कि वो उन औरतों को शेम करती हैं जो मतलब ट्रेडिशनल हैं, जो कि अपने जो रोल दिया है उन्हें उनको मानना चाहती हैं। फिर अबॉर्शन को मानती हैं। फिर वो नंगेपन को अच्छा मानती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि कनाडा में
उन्होंने इतनी रैलीज निकाली कि अब कनाडा में शर्टलेस रहना अलाउड है, लाइक इट्स नॉर्मल। ये लॉ आपका साथ देता है कि जिस मैन को अलाउड है कि वो चेस्ट अपना खोलें, वैसे औरतों को भी अलाउड है कि वो चेस्ट पे कुछ नहीं पहने। दे हैव दिस फ्री विल, उनके ऊपर कोई टोका टाकी नहीं है, और ये गवर्नमेंटल राइट है उनका कि वो कपड़े उतार सकती हैं बेसिकली। फिर हाई डाइवोर्स रेट्स, इसके बारे में मैं अभी आऊंगी कि इतने हाई मतलब डाइवोर्स रेट्स इतने हाई क्यों हो रहे हैं। फिर एक तरह से मर्दों से नफरत करने वाली चीज। फिर जो फैमिली वैल्यूज हैं उन्हें खत्म करना, ये इसकी बुराई है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो इस्लाम जो इतना अच्छा है, उसमें ये फेमिनिज्म क्यों आ गया? क्यों ऐसा हुआ कि इतने मुसलमान औरतें फेमिनिस्ट हो गई? क्या वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई थी? बहुत से लोग यही रीजन देते हैं कि जब औरतें बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो वो फेमिनिस्ट बन जाती हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन फेमिनिज्म का मुसलमानों के लिए ये था कि मुसलमान जो उनको राइट्स दिए गए थे औरतों को, वो देने से तैयार नहीं थे। बहुत सिंपल सा है। फेमिनिज्म इस्लाम में इसलिए नहीं आया कि अल्लाह ताला ने कोई कमी कर दी थी, जब बल्कि इसलिए आया क्योंकि मुसलमान मर्द औरतों को उनके हक नहीं दे रहे थे। बताएं कौन से ऐसे मुसलमान हैं जो औरतों को हक नहीं दे रहे थे? आप सभी को पता होगा, आपके अपने घर में कोई भी रिश्तेदार होंगे जिनको आप पता लगा सकते हैं, जो अभी भी अपने बहनों को या अपनी बेटियों को इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं दे रहे। अभी भी आप ऐसे लोगों को जानती होंगी जो कि बहुत लिमिट कर रहे हैं अपनी बेटियों को वो एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जो उनको जिनका उनका हक है। अभी भी इंडिया के कितने पार्ट्स हैं जहां पर उनको जिंदा गाड़ दिया गया है। तो मुसलमान औरतों को उनके हक नहीं दे रहे हैं। और जब इंडिपेंडेंस टाइम पर गांधी जी ने सती सिस्टम, अम्बेडकर ने इन सारे जो प्रॉब्लम थी, जो ये सिस्टम था जिंदा गाड़ने का सिस्टम, अम्बेडकर ने इसके खिलाफ लड़ा। और जब ये लोग नॉन मुस्लिम्स जो बाहर से फेमिनिज्म के बारे में समझकर इंडिया में आकर ये सोशल इवल्स को खत्म कर रहे थे, तो मुसलमानों को याद आया कि हाँ, हमारे इस्लाम में भी तो ये हक है, हमारे इस्लाम में भी तो ये सब है। और इससे पहले कि ये औरतें इसकी तरफ जाएं, फेमिनिज्म के बारे तरफ जाएं, चलो हम इनको इस्लाम के बारे में बता देंगे, इस्लाम में भी इनका ये हक है। फिर वो लोग जागे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुसलमान को क्या चीज काम करती हुई दिख रही थी? फेमिनिज्म। उन्हें दिख रहा था कि उनको हक कहाँ से मिल रहा है? फेमिनिज्म की तरफ से। और कहाँ कौन उनका हक छीन रहा है? मुस्लिम्स। उनका हक कौन छीन रहा था? मुसलमान मर्द। तो उन्हें क्या फेमिनिज्म अच्छा लगेगा या इस्लाम? आप कहेंगे कि हाँ, इस्लाम ने तो हक दिया है, मुसलमान बुरे थे, आप मुसलमान को बुरा करें। लेकिन जिसके ऊपर जुल्म होता है, वो अपने आप को उस कंडीशन से निकालना चाहता है। वो ये नहीं कहेगा नहीं मैं इधर ही रहूंगा, वो तो मुसलमान मर्द गलत हैं, इस्लाम तो सही है। नहीं, वो पहले अपने उस सिचुएशन को, अपने आप को निकालेगा अपने आप को उस सिचुएशन से, फिर सोचेगा कौन सही है कौन गलत। ऐसी बहुत सी औरतें जो अपने आप को ऐसी सिचुएशन से निकालती हैं फेमिनिज्म के जरिए, और फिर आकर वापस क्या कहती हैं? इस्लाम हक है। और जब वो ये बात कहती हैं तो मुसलमान मर्द उनको चुप करवा देते हैं, ये कहकर कि तुम फेमिनिस्ट बन गई हो। और ये सच है, जो इस्लाम ने हक दिए हैं, उन हक के लिए मुसलमान अब ये कह रहे हैं कि ये फेमिनिस्ट हो गई है। बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि उसने बहुत पढ़ लिख लिया है तो वो अब रिश्तों को मना कर रही है। जैसे उसका रिश्तों को मना करना उसका हक नहीं है, कि वो मना नहीं कर सकती। वो पढ़ लिख गई है तो वो डाइवोर्स दे रही है। जैसे डाइवोर्स के ज़ायद रज़ी ताला अन्हु ने नहीं दी थी, क्या वो गलत थे? नहीं, उनकी जो डाइवोर्स थी वो बस इस रीजन की वजह से थी कि उनकी बन नहीं रही थी। सिंपल रीजन। लेकिन आज हम उसी डाइवोर्स को बहुत नेगेटिवली लेते हैं, जबकि औरत खुद बताती होती है कि मुझे मेरे हस्बैंड मारते थे, मुझे मेरे हस्बैंड गालियां देते थे, लेकिन हम क्या कहते हैं? सबर करो। दिस इज नॉट इस्लाम। आप पहले इस्लाम को गलत तरीके से पेश करते हैं, और जब वो औरतें फेमिनिस्ट बन जाती हैं तो आप कहते हैं आपको ये तो हक इस्लाम में है, तो आप मुस्लिम, आप अपने आप को मुस्लिम कहिए, तो आप फेमिनिज्म क्यों कह रही हैं? वो इसलिए अपने आप को फेमिनिज्म कह रही हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि मुसलमान उनका साथ नहीं दे रहे। अब मैं आपको ऐसे लॉज बताने वाली हूँ जो इस्लामिक कंट्रीज के लॉज हैं, जो कि फेमिनिज्म आने की वजह से बदले।
जबकि ये हक इस्लाम में पहले से दे रखा था। सबसे पहले मैं आपको डाइवोर्स के लॉज बताती हूँ। इजिप्ट में डाइवोर्स का लॉ बना था 2000 में, जो खुला का हक है कि औरतें खुला ले सकती हैं। उससे पहले औरतें खुला नहीं ले सकती हैं, बस मर्द तलाक दे सकते थे। पाकिस्तान क्योंकि लेट बना था तो उनका तो सही है, 1939 में ये बना था। यमन में खुला की कुछ कंडीशंस हैं जिसके लिए वो ले सकती हैं, उसके अलावा अगर वो कंडीशंस नहीं है तो आप खुला नहीं ले सकती। फिर सऊदी अरब में 2013 में खुला का रूल बना है। और मैंने जब रिसर्च करा था, क्योंकि मेरे क्लास में ये बहुत बड़ी बहस हुई थी, तो मैंने उस पे कहा था कि डाइवोर्स नहीं होगी, डाइवोर्स अलाउड नहीं होगा, लेकिन खुला अलाउड होगा सऊदी अरब में। तो बोली ऐसा नहीं है, आप जाकर सर्च करिए। मैंने सर्च करा तो 2013 में पता चला कि उन्होंने खुला का राइट दिया था। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि खुला का हक जो पहले से इस्लामिक लॉ में है, शरिया में है, वो इस्लामिक कंट्री ने नहीं लागू करा था। फिर आता है एक तरह से ये एक स्टैटिस्टिक्स है जिसमें ये दिया हुआ था कि करीब 5000 औरतों ने, और ये एक ईयर का स्टैटिस्टिक्स है, और इसमें गल्फ कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, तो इसमें सऊदी अरब, यूएई, यमन, और इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में 2-3 कंट्रीज और थी, मैं जिनका नाम भूल रही हूँ। उन सारी कंट्रीज का मिलाकर ये एक स्टडी है जो करी गई थी। उसमें ये देखा गया था कि 5000 औरतों ने रजिस्टर करा था खुला के नियम, और उसमें से सिर्फ 125 को असलियत में खुला दी गई थी। इसमें काफी सही रीजन थे, काफी बार खुला इसलिए नहीं दी जा रही थी क्योंकि उनकी रीजनिंग सही नहीं थी, वो बहुत छोटी सी रीजन पर खुला ले रही थी। कहीं कहीं पर औरतों ने ये भी कहा है कि हम प्रूफ दिखाते थे हमारे अब्यूज के, और हमारे जो इमाम थे वो ये कहते थे कि आप झूठ बोल रही हैं, या फिर वो ये कहते थे कि हमें नहीं देनी, जब तक आपके हस्बैंड नहीं मानते हम आपको खुला नहीं देंगे। जबकि खुला जो है वो खरीदती है, उसको उसमें हस्बैंड की एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता है। तो बेसिकली जो देखा गया है स्टेटिस्टिकली कि इमाम जो हैं, जो साथ दे रहे थे, फेवर जो दे रहे थे, वो मर्दों का दे रहे थे। क्या ऐसा इमाम होना चाहिए जो कि आपस में सही से जस्टिस नहीं कर पाए, जो एक जेंडर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे? जबकि हम देखते हैं जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा दिया करते थे, तो उसमें औरतें और मर्द दोनों शामिल होते थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, तो उसमें औरत और मर्द दोनों शामिल हुआ करते थे। सारी एजुकेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में दी है, लेकिन हम उस चीज को पीछे लेते हैं। फिर मैं आपको सऊदी अरब के बेसिकली लॉज बताऊंगी जो उन्होंने बदले हैं फेमिनिज्म के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि ये पहले से लॉज होना ही नहीं चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मिसजॉनिस्ट की वजह से उन्होंने ये लॉज बनाए थे। और अब जब हर जगह उसका चर्चा हो गया फेमिनिज्म का है, सऊदी अरब यूं है, सऊदी अरब यूं है, उनके खिलाफ नॉन मुस्लिम औरतें खड़े होकर उनसे लड़ती हैं और फिर वो उस लॉज को चेंज करते हैं। सबसे पहला 2000 सबसे पहले 1970 में औरतों के लिए एजुकेशन अलाउड हुई, हायर एजुकेशन, 11th 12th एंड ऑनवर्ड्स। फिर 1999 में वुमेन की नेशनल आईडी इश्यू हुई थी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेशनल आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन की। ये इंसान अपना एक इंसान है, इसके पास हक है कि ये मतलब सेपरेट आइडेंटिटी है, जैसे हमें इस्लाम में है कि इस्लाम में जो औरत है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी के, वो भले ही अपने हस्बैंड के अंडर काम करती है, उसका हस्बैंड उसके ऊपर अथॉरिटी रखता है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता है कि औरत की अथॉरिटी नहीं है। वो अभी भी एक माँ होती है, वो अभी भी एक बीवी होती है, उसके अपने भी हक होते हैं। तो उसके अलावा प्रॉपर्टी की है, जब उसके पास नेशनल आईडी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदेगी? तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम नेशनल आईडी से जुड़े हुए होते हैं, जो कि 1999 में सऊदी अरब ने औरतों को दी थी। फिर हम देखते हैं 2005 में ये लॉ बना था कि कोई भी फोर्स मैरिज नहीं होगी। 2013 में लॉ बना था कि मोटरसाइकिल्स और बाइसिकल्स औरतें चला सकती हैं। वो पहले मतलब घर नहीं निकल सकती थी, और घर अगर निकल के कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर साइकिल चला रही हैं या फिर बाइक चला रही हैं औरतें, तो वहां पर वो नहीं जा सकती थी, मतलब उनको अलाउड ही नहीं था चलाना। जबकि इस्लाम में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, औरतें साइकिल चला सकती हैं, औरतें बाइसिकल चला सकती हैं, जैसे घोड़ा चलाया करती थी पहले जमाने में, अब हमारे पास ये चीज है। इस्लाम में कोई ऐसा हमारे ऊपर जुल्म नहीं है कि हम
एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। फिर 2017 में अलाउ हुआ था कि वो बिना एक मेल एस्कॉर्ट के हॉस्पिटल जा सकती हैं, वरना वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती नहीं जब तक कि उनके पास उनके हस्बैंड नहीं हो, या फिर उनका बेटा नहीं हो, या फिर उनके वालिद नहीं हो। अब इमेजिन अगर एक औरत है जिसके हस्बैंड, बेटा और उनके फादर तीनों वर्क करते हैं, ठीक है, सुबह से शाम उनका वर्क है, और एक वुमेन को इमरजेंसी है, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती जब तक कि उसका कोई मेल गार्जियन उसके साथ नहीं हो। कितनी बड़ी रुकावट है ये। और ये 2017 में ये लॉ खत्म हुआ। 2017 में ही अलाउ करा था ड्राइविंग करना। अब देखें, जब इस्लाम को आप छोड़ेंगे और फेमिनिज्म की वजह से आप लॉज को बदलेंगे, तो आप बहुत से लॉज गलत तरीके से बदलेंगे। जैसे कि एक लॉ बदला है, जो आप जानते हैं कि सऊदी अरब में अब औरतें बिना अपने महरम के हज कर सकती हैं, वो उम्रा कर सकती हैं। आपने सुना होगा इस लॉ के बारे में। तो अगर आप इस्लाम को पहले से फॉलो करते तो आप फेमिनिज्म के नीचे नहीं दबते, लेकिन आप दबे क्यों? क्योंकि आपने इस्लाम को सही से फॉलो नहीं करा। 2018 में लॉ बना था कि एक औरत की जो वेज है और जो मर्द की वेज है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक रीजन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन रीजन है, उसके अलावा कोई रीजन है तो वो है, वो मतलब एक्सेप्टेड है। लेकिन कोई ऐसा रीजन है कि मर्द जो हैं फैमिली चलाते हैं, औरतें फैमिली नहीं चलाती, तो ये जो काम कर रही हैं 8 घंटे का, उसके कम पैसे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर 2019 में ये लॉ बना था कि औरतों को तलाक के बारे में नोटिफाई करा जाएगा। पहले क्या था कि वो कोर्ट में जाकर मर्द बहुत सी बार तलाक दर्ज कर दिया करते थे, और औरतों को बहुत बाद में पता चलता था कि उनको असल में तलाक भी मिल गई गवर्नमेंट के जरिए कोर्ट में। तो अब उन्हें उसका इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको नोटिस मिलता है। इसके अलावा अब जो है औरतें अपने आप से, अब मैंने कहा था एक चीज आप रोकेंगे, दूसरी तरफ इस्लाम के जरिए अगर आपने लॉज नहीं बनाए, तो फेमिनिज्म के जरिए आप लॉज बनाएंगे। अब जो लॉ बनाए 2019 में कि वो जो है अपने आप अ, खुला तो ले सकती हैं, उसके अलावा मैरिज, शादी बिना महरम के कर सकती हैं। फिर उनको ये भी हक मिला है 2021 में कि वो चाहे सिंगल हो, विडोड हो यानी बेवा हो, या फिर तलाकशुदा हो, वो अपने आप अकेले रह सकती हैं बिना महरम के। अब हम देखते हैं कि बेवा और डाइवोर्स का तो एक तरीके से अलाउड है, लेकिन जो सिंगल हैं उनके लिए अलाउड नहीं है। लेकिन इस्लाम में, मतलब सऊदी अरब में उन्होंने इस बारे में अलाउ कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि ये एक पॉजिटिव चेंज आया है। एक मुसलमानों का भी अपना जो ईमान था वो जाग गया कि हमारे भी कुछ हक हैं, और हमारी औरतों के भी कुछ हक हैं जो हमें देना पड़ेंगे। अगर हमने नहीं दिया तो ये फेमिनिस्ट बन जाएंगी, चाहे वो फेमिनिज्म का डर क्यों ना हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्स एंड खुला? डाइवोर्स जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो तलाक के लिए यूज करते हैं। तो तलाक जो है वो बिना किसी जो होता है ना ऑफिशियल वर्क के भी करा जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि तलाक 3 टाइम्स में देकर, कि पहले उसने तलाक का, फिर 1 मंथ बाद तलाक का, फिर थर्ड टाइम तलाक का, तो बस वर्बल भी अगर हो रहा है तो ये माना जाता है। जबकि खुला जो होता है ये एक पूरा ऑफिशियल वर्क होता है, जिसमें आप पेपर वर्क करके साइन करते हैं कि खुला हो गई, मतलब डाइवोर्स हो गई। तो ये मतलब डिफरेंस होता है हल्का सा उसमें कैसे करा जाता है। तलाक जो होती है मर्द देते हैं, खुला औरतें देती हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे इंशाल्लाह मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इसके बहुत नेगेटिव भी आए हैं, जाहिर सी बात है। जैसे मैंने आपका बताया कि सऊदी में जो है बिना महरम के उम्रा कर सकती हैं अब। और सऊदी में ये भी अब लॉ बन गया है कि जो है अ, जो एक पहले लॉ था कि औरतों को रोका जाता था रात से वर्क करने से, या फिर कोई हजारियस जॉब है, कोई ऐसी जॉब है जिसमें जान का या हेल्थ का डर रहता है, उन जगहों पे काम करने से मना था औरतों को। लेकिन अब जो वो लॉ था उसको डिलीट करवा दिया औरतों ने कि ऐसा कुछ नहीं है, हम रात को भी काम करेंगे, हम ऐसी जगहों पे भी काम करेंगे, हम कम नहीं है मर्दों से। उन्होंने ये लॉ कैंसिल करवा दिया। तो अब हम जो आते हैं वो आते हैं इंडिया की तरफ। क्या इंडिया में अब कोई बुराई नहीं है? अब क्या हम सारे हक दे रहे हैं? जैसा भी मैंने बताया, अभी भी हम सारे हक नहीं दे रहे हैं। अभी भी हम वो सारी चीजें नहीं बता रहे हैं, और ये बेसिकली जो फेलियर है वो है औरतों का ही। औरतें ही औरतों के राइट्स छीन रही हैं।
इस्लाम एक्सेप्ट फॉर दैट इनहेरिटेंस के राइट के अलावा जो बाकी राइट हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट और नॉर्मल जो राइट्स होते हैं औरतों के जो इस्लाम ने दे रखे हैं, वो कौन छीनता है? दूसरी औरत है। और अगर किसी औरत को ये राइट दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा एक हक है इस्लाम में कि औरत के ऊपर रखा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि वो चाहें तो इन लॉज के साथ रहे, और अगर वो रहती है तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि उसे सवाब मिलेगा एक्स्ट्रा, उसको सदका कर रही है वो एक तरीके से, और ये बहुत बड़ा एहसान कर रही है वो। लेकिन क्या कोई ऐसा एहसान मानता है? लेकिन इसके अलावा उसके पास ये भी राइट है कि वो मना कर सकती है कि मैं मतलब ऐसी फैमिली कंडीशन में नहीं रहना चाहती। अब अगर कोई औरत मना करती है तो क्या मर्द उसे टोकते हैं या दूसरी औरतें? कौन उसे रोकता है? कौन उसके बारे में बुरा भला कहता है? कौन सोसाइटी में उसको एक तरह से बायकॉट करने की कोशिश करता है कि उसके पीछे बुराइयां हो रही हैं, वो जैसे आ रही हैं, उसकी तरफ आंख कर करके लोग एक तरह से ताना मार रहे हैं, उसका जीना मुहाल कर रहे हैं। ये क्या इस्लाम की देन है? तो हम जो सिंपल सिंपल चीजें होती हैं जो इस्लाम ने हमें दी हैं और वो देखते हैं कि हम की औरतें उन चीजों को ले रही हैं, वो इतनी माशाल्लाह उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना नवाजा है कि वो अपने राइट्स को कर पा रही हैं। फॉर एग्जांपल वो अपनी एजुकेशन हायर एजुकेशन ले पा रही हैं, तो हम उन औरतों पे बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उन औरतों को नीचे लाना स्टार्ट कर देते हैं, और हम उनको एक तरह से ना कंपटीशन में ले लेते हैं कि इसको क्यों ये मिल रहा है, हमने तो इतनी मुसीबतें झेली। उसको एक ये करने के बजाय कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें और नवाज़े और हमें भी ऐसे ही नवाज़े, हम उसको एज़ अ कॉम्पिटिशन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और कोई औरत बताती है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब अब्यूज़ करा या कुछ करा इसलिए मैंने तलाक ले ली। औरतें ज़्यादातर जो रिस्पॉन्स होता है, जो अगर आप तलाकशुदा से किसी से ऐसी जो सिचुएशन में रही हैं, उनसे बात करें, वो कहती हैं कि हमने भी तो झेला है, सब्र करना पड़ता है। तो ये जो सिंपल छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे हम औरतों का दिल इस्लाम से बाग़ी करवाते हैं। जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, ये बैकबाइटिंग प्रॉब्लम्स, ये चुगली की प्रॉब्लम्स, ये अगर हम रोक दें, तो जो राइट्स हैं वो बहुत आसान हो जाएँ। लेकिन वो रोकी नहीं जाती हैं, बल्कि एक सोसाइटी मिलकर जो अच्छाई है उसके खिलाफ खड़ी होती है। नॉर्मल चीज़ों में जो बड़ा चीज़ है, जैसे कोई औरत आपको, कोई लड़की आपको हिजाब पहनती हुई दिख गई, तो उसके ऊपर बातें बनती हैं। तो ये छोटे-छोटे हक तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस्लामिक फेमिनिज़्म के ऊपर कि आप निकालें, एक सुहैमा मंजूर खान है, उसने टेड टॉक पे जाकर एक बहुत ही अच्छी उसने एक स्पीच दी थी। मैं इसके बारे में जब रिसर्च कर रही थी तो टेड टॉक्स पे जितनी भी मुसलमान औरतें आ रही थी वो 2 टाइप की थी। या तो वो ये समझा रही थी कि इस्लाम फेमिनिज़्म के साथ है, कि इस्लाम ने भी उनको हक दिए हैं, है ना? लेकिन ना जब वो उनके ऊपर खिलाफ करा जाता, उनको उनसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि इस्लाम में तो 4 वाइफ्स का है, इस्लाम में तो पर्दे का है, इस्लाम में तो ऐसा है कि आपको हस्बैंड का अपना कहना मानना है। तो वो उन पे कहती नहीं कि हाँ, वो हल्का-सा कल्चर है। वो उस चीज़ को ये नहीं मानती थी कि वो इस्लाम की एक पोज़ीशन है, जो इस्लाम ने ली है, जो इस्लाम ने एक मर्द को हक दिया है, वो ये मानने को तैयार नहीं होती। या फिर दूसरी तरफ ऐसी औरतें आती थीं जो कि कहती थीं कि हमें इस्लाम को चेंज करने की ज़रूरत है। वो सीधे इस्लाम को चेंज करने की बात करती थीं, वो ये मुसलमान औरतें। तो ये एक लड़की आई जिसका सुनते ही इतनी खुशी हुई मुझे, इसने मंज़ूर ने ये कहा कि मैं थक गई हूँ, आप जब भी ऐसा कोई टॉपिक होता है फेमिनिज़्म का, आप मुसलमान औरतों को स्टेज पे बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, "क्या तुम खुश हो अपने दीन से?" लेकिन आप जब मुसलमान औरतें खड़े होकर कहती हैं कि हमारे खिलाफ काम करा जा रहा है, पेरिस में हमें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तब आपको फेमिनिज़्म का ख़्याल नहीं आता? तब क्या आप औरतों के लिए नहीं खड़े होते? और मैं जो देख रही हूँ, वो कुछ नहीं है, आपको हमदर्दी औरतों से नहीं है, आपको हमदर्दी मुसलमान औरतों से नहीं है, बल्कि आपको इस्लामोफ़ोबिया है। बल्कि आप इस्लाम से और चिढ़ते हैं, और अब हमारे पॉइंट्स देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारे खिलाफ खड़े हो सकें। तो उसने काफ़ी अच्छी तरीके से इनको खामोश कर दिया था। माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी स्पीच है। मैं नेम इंशाल्लाह इसमें भी डाल देती हूँ चैट बॉक्स में।
सुहेमा मंजूर खान, ये मैंने चैट बॉक्स में नेम डाल दिया। इंशाल्लाह आप इनकी टेड टॉक जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी टेड टॉक दी है माशाल्लाह, और काफ़ी छोटी है। अब इसके अलावा स्टार्ट हुआ है फेमिनिज़्म से एक बहुत ही बुरी चीज़, और वो है उल्टा। उल्टा ये हो गया है कि औरतों से नफ़रत। अब मर्दों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया है, और ये मुसलमान मर्द हैं जो ये बातें कहते हैं। मैं अब वेस्ट की तरफ नहीं जा रही, मैं सीधे अब बस मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वेस्ट अपने साथ क्या करते हैं, लेकिन हम मुसलमानों की तरफ आते हैं। उन्होंने अब औरतों से नफ़रत करना स्टार्ट कर दिया, और मर्द अब ये कह रहे हैं कि जब औरतों को हक चाहिए तो फिर मैं भी अपना हक लूँगा 4 बीवियों का। अगर औरतों को हक चाहिए तो मैं भी अपना हक लूँगा कि मैं जो हूँ बेसिकली मैं बड़ा अल्लाह ताला ने मुझे अपनी औरत के ऊपर बनाया, तो मैं वो उसका हक अपने आप पूरा करूँगा। तो उन्होंने ना बेसिकली एक इसको डिमीनिंग एक कॉम्पिटिशन में ले लिया कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिन भर बाहर काम कर रहा हूँ। मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आप खोलें तो आपको बहुत से ऐसी चीजें मिलेंगी जहाँ पर मर्द कह रहे हैं कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, औरतें बस घर बैठ कर खाना खाती हैं। तो इसकी एक तरह से ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर कुछ मर्द कहना चाहता हूँ मेरी बीवी काम करे, और कुछ मर्द ये कह रहे हैं कि मैं आई जस्ट हेट ये मतलब मैरिज ही मैं मतलब हेट करता हूँ ये मैरिज सिस्टम। तो ये जो है एक तरीके से ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है। इसमें ये कहा जाता है कि औरतें जो हैं अब गोल्ड डिगर्स बन गई हैं, वो मेहर मांग रही हैं। पहले की औरतें तो मेहर नहीं मांगती थी। बेस मैं कह रही हूँ राइट छीना जा रहा है। तो मेहर लेने को वो किससे इक्वेट कर रहे हैं? गोल्ड डिगर से। जबकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हक दिया है, और वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि उमर ताला ने भी तो कहा था कि कम देना चाहिए, और हदीस भी तो है कि जो जिसने कम मेहर लिया उसकी सबसे अच्छी शादी रही। तो वो एक इस हदीस को यूज़ कर कर एक तरीके से नेगोशिएट करते हैं। फिर औरतों से कहा जाता है कि जो अपना प्रॉपर्टी का राइट है उसको लीव कर दो, उसको फ़ॉरफ़ीट कर दो। जबकि औरतों को ऑलरेडी इस्लाम में कम हिस्सा दिया है, और ऑलरेडी इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को 2 और औरत को 1 हिस्सा दिया है। एक रीज़न की वज़ह से दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि क्या सिस्टम है, किस सिस्टम में क्या फ़ायदा होगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक हिस्सा भी हम किस तरह नहीं दें। फिर जो भी बेसिक राइट्स दिए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको फेमिनिस्ट कह देना। जैसे कि मैंने बताया कि एक शेख हैं, उनकी अगर आप वीडियो देखें 4 आवर वीडियो 2 आवर नहीं 1 आवर वीडियो थी शायद वो, और उसमें पूरी उन्होंने डिस्क्राइब करा था इन डिटेल कि क्यों 4 वाइफ्स अलाउड हैं इस्लाम में, क्यों महर का क्या सिस्टम है, और सारी उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम और सब कुछ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करा था। और उसके नीचे जो कमेंट्स थे, उसमें औरतें या तो ये कह रही थी कि मुझे बहुत सुकून मिला इसको पढ़कर, मुझे समझ में आया कि क्या हक है। लेकिन कहीं पर लेकिन कहीं पर ये कहा जाता है कि तो औरतें कह रही थी कि हमें बड़ा सुकून हुआ इन सब का सुनकर, और एक जगह औरतें अभी भी लड़ रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, इस्लाम में होना ही नहीं चाहिए 4 वाइफ्स का। और दूसरी तरफ कुछ मर्द ऐसे थे जो कि कमेंट ये कर रहे थे कि ये स्कॉलर जो हैं फेमिनिस्ट हैं, इन स्कॉलर ने वेस्ट के पैसे खाए। और उसका रीजन क्या था कि उन्होंने अपने लेक्चर में जब वो पूरा फैमिली सिस्टम समझा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि 4 वाइफ्स का रखने का क्या तरीका होगा कि तीनों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना है आपको, तीनों को अलग घर देना है आपको, तीनों को इन-लॉ से अलग रखना है आपको, राइट? तीनों का अपना हक होगा, तीनों के अपने बच्चों का हक होगा, सब वो चारों का, और वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसमें मर्द ये कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो इन-लॉज़ के साथ नहीं रहें? तो इन-लॉज़ का साथ रहना यानी सास-ससुर के साथ रहना हक है, और ये हस्बैंड माँग सकता है। उन्होंने इस तरह की चीज़ें कहना स्टार्ट कर दी थी, और स्कॉलर को एक तरह से फेमिनिस्ट कहना और वेस्ट के पैसे खाए हुए कहना स्टार्ट कर दिया था। एक स्कॉलर को, एक इमाम को, जिनको इनको फॉलो करना था। फिर नॉर्मल हम देखते हैं जो जोक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसमें औरतों का मज़ाक उड़ाया जाता है, उनका इंटेलिजेंस का मज़ाक उड़ाया जाता है, उनकी ड्राइविंग स्किल्स का मज़ाक उड़ाया जाता है। राइट? उनको उनका मज़ाक उड़ाया जाता है, उनकी इंटेलिजेंस पे उनका मज़ाक उड़ाया जाता है, उनकी एजुकेशन पे मज़ाक उड़ाया जाता है, उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस पे मज़ाक उड़ाया जाता है कि इन औरतों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि एक्सपीरियंस हम जो लिमिट रखते हैं, वो इसी वज़ह से रखते हैं कि पर्दे की वज़ह से।
लेकिन हम उन्हीं उसी चीज का मजाक उड़ाकर उसको फील करवाते हैं कि वो कमतर है। उसकी जो फेमिनिन क्वालिटी उसको पसंद होती है, मेकअप पसंद होता है, या उसे सजना पसंद होता है, या उसको फैशन पसंद होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो भी फेमिनिन हॉबीज उसकी होती हैं उसको मजाक उड़ाया जाता है। और जब वो औरत मर्द की हॉबीज की तरफ टर्न करती है कि मैं इनमें से कोई हॉबीज लूं, अगर मेरी हॉबीज इतनी कमतर है तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। तो बेसिकली आप औरत की स्पेस बहुत लिमिटेड रख देते हैं। फिर एक बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होती है हिजाब की। आप स्पेशली इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें तो इसने हिजाब इस तरह से नहीं पहना, इसने हिजाब इस तरह से नहीं पहना, और एक बहुत ही ज्यादा हिजाब से लेकर बहुत ज्यादा टोका टाकी स्टार्ट हो गई है। जबकि आपको गैर लोगों को नहीं टोकना है, आपको बस अपने लोगों को टोकना है। जो वुमेन ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपने आप को जाहिर कर रही है वो आपकी बात से नहीं कवर करने लगी है। सिंपल सी चीज है। नाउ एक मॉडर्निज्म आया है कि हम मॉडर्न मुसलमान हैं, हम पुराने टाइप के मुसलमान नहीं है, हम मॉडर्न हैं, हम जॉब करने देंगे। इसका मतलब ये होता है कि तुम जॉब भी करना फिर घर के काम नहीं करना। तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। हमें ऐसी बहू चाहिए जो कि एजुकेटेड हो, जो कि वर्किंग हो, जो कि घर का भी सामान रखे। तो एक्सपेक्टेशंस जो है इंक्रीज करते गए। फिर कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है मेन के लिए कि वो किस तरह बिहेव करते हैं। स्पेशली अगर आप यंगस्टर्स को देखें, एडोलसेंट्स को देखें, तो आपको नहीं पता होगा लेकिन आपके भाई हैं, आपके बेटे होंगे, तो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं वुमेन से, आपको शर्मिंदगी होगी। अगर आप किसी भी इंस्टाग्राम पे, फॉर एग्जांपल जब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी, तो आप ये देखेंगे कि औरतें नहीं डीएम करती हैं मर्दों को, उनके पास मर्दों के डीएम आते हैं, और ये मुसलमान मर्द होते हैं जो कि डीएम करते हैं उन्हें, जो मैसेजेस करते हैं। तो इस्लाम में जो हिजाब है वो किससे स्टार्ट करा है कि मर्द अपनी निगाह नीचे रखें। यहाँ पर मर्द अप्रोच कर रहे हैं। इसके अलावा एक ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है कि गर्ल्स को रेस करना बहुत आसान है मर्द के मुकाबले में। जबकि हदीस क्या है कि जो दो लड़कियों को करे, तीन लड़कियों को रेस करे, उसके लिए इतना सवाब, इतना सवाब है। क्यों रखा है इतना सवाब? क्योंकि एक डिफिकल्टी है। लेकिन इस्लाम में वो जो हमारा सिस्टम है उसने क्या कह दिया कि औरतों को रेज करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? इसका सिंपल रीजन ये है कि हम उन्हें रेज नहीं करते, हम उन्हें अपना पार्टनर समझ कर उनसे काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रही हूँ घर के काम नहीं करना है, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ वो यहाँ पर ये है कि हम अपने बेटियों को बच्चों की तरह रेस करते हैं, अपनी बेटियों को अपने पार्टनर्स की तरह रेस करते हैं। तो ये जो एक तरह से एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है ये भी बहुत गलत है। फिर प्रॉब्लम आती है गुड मेल रोल मॉडल की। हमारे जो यंगस्टर्स के रोल मॉडल्स हैं वो अच्छे मुसलमान रोल मॉडल्स नहीं हैं। सिंपल। उनके अगर कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन में जाता है तो वो रोल मॉडल्स रहते हैं एंड्रयू टेट को। जबकि बहुत ही अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स वहाँ ऑलरेडी, मुस्लिम रोल मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जो यंगस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं वो इन लोगों की तरफ हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कहना चाहूंगी कि फेमिनिज्म वेस्ट में स्टार्ट हुआ था। वेस्ट फेमिनिज्म एक जो स्टार्ट हुआ था फैमिली सिस्टम को बनाए रखने के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत चेंज हो गई है। अगर आज के जमाने में आप अपने आप को फेमिनिस्ट बुला रहे हैं तो वो आप जुल्म कर रहे हैं, वो आप हक पर नहीं हैं। क्योंकि फेमिनिस्ट अब बेसिक हक देना नहीं रहा। अब वो सारी चीजें के लिए खड़ा होता है जो इस्लाम के खिलाफ है। सबसे जो हम औरतें खड़ी होती हैं वो खड़ी होती हैं इस्लाम के हक के साथ। अगर कोई इंसान ये कहता है कि ये इस्लाम में हमें हक नहीं मिला है, तो हमें इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि इस्लाम में हमें क्या हक है। इसके अलावा हमें ये भी जानना है कि इस्लाम सबसे सही तरीका है। क्यों है सही तरीका? क्योंकि एक चीज जो स्टार्ट होती है इंसानों से, और जो एक चीज ऑलरेडी बनाई गई है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से, उसमें क्या चीज हक से होगी? वही जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताई है। और ये हमेशा हमेशा के लिए होगा। जो कुरान, जो इस्लाम है वो हमेशा हमेशा के लिए है, और वो हमेशा हमारे हर जमाने में सही तरीका बताएगा, सही बाउंड्री सेट करेगा। ये बाउंड्री कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन फेमिनिस्ट की बाउंड्री बढ़ती और घटती गई है। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए, मुसलमान औरतों के लिए जरूरी है कि जो हमारे राइट्स हैं वो हम भले ही खुद नहीं ले पाए, लेकिन आगे की जनरेशन को सिखाएं कि उन्हें देना है। इंशाल्लाह बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जो भी हमने सीखा कि फेमिनिज्म भले ही बहुत बड़ी बुराई रही है,
लेकिन उसका बहुत फ़ायदा रहा है इस्लाम को ऊँचाई दिलवाने के लिए। जो भी चीज़ होती है, माशरे में जो भी बुराई होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सी बार नॉन मुस्लिम्स का साथ लेकर उस बुराई को इस्लामिक कम्युनिटी से निकालता है। फेमिनिज़्म भी उसी तरह की एक अच्छाई आई थी, जिससे मुसलमान जागे थे कि उनके लिए एक हक है। अब जब मुसलमान जाग गए हैं, तो हमें फेमिनिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें फेमिनिज़्म की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम इन्हीं हक को यूज़ करके एक अच्छी सोसाइटी बनाएँगे। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकिल्लाह सारा, माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छे से आज के टॉपिक को सबको बताया, काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपको अपने पेरेंट के लिए सदक़े जारिया बनाए, आमीन। चलिए अब जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में आज के फीडबैक दीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या आपने आज के सेशन से हासिल किया? जल्दी-जल्दी आप लोग जो है अपने फीडबैक दे दीजिए, ताकि जो आज के हमारे उनकी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। जज़ाकल्लाह फीडबैक सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, जल्दी-जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में अपने फीडबैक दे दीजिए। जी, इंशाअल्लाह ताला आज जो हमारी 9 बजे क्लास है इंशाअल्लाह वो रहेगी, तो आप सब लोग 9 बजे जो क्लास है 9 पीएम पर उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, मेरा जीना मेरा मरना। तो चलिए, माशाल्लाह बहुत प्यारे फीडबैक रहे आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इस तरह कल हम दोबारा से एक नए टॉपिक को लेकर आएँगे आपके सामने, तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सीरीज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आज की जो यूथ है, न्यू जनरेशन है, इससे फ़ायदा उठाए और जो आज हमारे मुआशरे में जो भी खराबियाँ हैं, उनसे हम सब महफूज़ रह सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।